Hello everyone, welcome to Geology Concepts. Today we have with us Mr. Akshat Srivastav, who has secured all rank 15 in UPSC Combined Geosciences Examination 2024. So we'll be talking to him about his whole preparation journey, his ups and downs, his strategy of prelims, mains, interview, and everything. So it will be a very nice video or very informative and insightful videos for the aspirants, those who are planning to sit for the exam, and even for those who are already in this preparation. So let's start. Hello, Akshat. Welcome. Uh, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good evening. तो पूरा जर्नी का बात करेंगे हम इस वीडियो में. बट Sure, sir. स्टार्ट अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ब्रीफ कर दो, देन विल बिगिन. Okay, sir. So, firstly, I want to thank you and the entire Geology Concepts team for giving me or providing me a platform to share my experience and like the complete journey of my examination. So, sir, my name is Akshat Srivastav. I'm a native of Lucknow. Sir, I have done my primary education from Lucknow, St. Francis College, Lucknow, and then my undergraduation from Sri Jai Narayan PG College, which is affiliated to University of Lucknow. And sir, then I did my post graduation from University of Lucknow itself in the year 2022. Sir, and after this 2022, my journey of preparation began for this examination. And currently, sir, I'm staying in Delhi with my parents. Right. So आप born and brought up in Lucknow only. Yes, sir. Born and brought up. My entire education is from Lucknow, sir. Like I was born in Lucknow, brought up, Nursery and to complete PG. education. Huh? Yes, sir. Nursery to PG. Exact, sir. Nursery to PG. Very nice. So Yes, sir. जिस दिन रिजल्ट आया, राइट, Yes, sir. Yes, sir. कोड और रैंक 15. सो Yes, पहले sir. तो Yeah, था, yeah. वाज इट एक्सपेक्टेड कि लग रहा था कि अच्छा आएगा? Sir, to be very frank, sir, this examination is completely it is based upon uncertainty, sir. So we cannot like actually say that whether we will make it to the list or not. But sir, saying having said so, sir, I was like, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद थी that I will make it into the final list right now. मतलब in this attempt, sir. So उम्मीद तो थी sir, but थोड़ी सी uncertainty तो रहती है sir. Of course, बहुत ज्यादा. हाँ, yes sir. एक्सपेक्टेशन आपका था लेकिन कि होना चाहिए. ये सर एक्सपेक्टेशंस था तो और सर फाइनली सर आप लोग की ब्लेसिंग्स और बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग गॉट अलाइंड एंड आई मेड इट इनटू द लिस्ट सर. तो किसने बताया आपको रिजल्ट? आपने खुद देखा या यू गॉट टू नो फ्रॉम सम? Sir, I believe that I was one of the first person in the geology community who would have seen the result because ओके. sir मैंने रिजल्ट डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट से देखा सर. एंड कोई किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल ग्रुप पे सर ऐसा रिजल्ट नहीं आया था. बट मैंने सर उसमें यूपीएससी की वेबसाइट खोली और सर मैंने रिफ्रेश किया तो उस पर दिख के आया सर. तो मैंने खुद ही सर इट वाज लाइक द टाइम आई रिमेम्बर इट वाज 4:06 PM. 4:06 I remember the exact time. एंड नाइस. सर और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मंडे को आना है रिजल्ट क्योंकि सर यूपीएससी का जो ट्रेंड रहता है वो सर वीकेंड में देते हैं रिजल्ट लाइक थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे इवनिंग. सर पता नहीं ऐसा क्या हुआ मैंने रिफ्रेश किया मैं साइट पे गया मैंने कहा एक बार चल के देखते हैं मैंने रिफ्रेश किया सर एंड इट शोड लाइक फाइनल रिजल्ट. तो सर उस समय सर सम मेरी कोइंसिडेंस. एंशियस सर कोइंसिडेंस कंप्लीट कोइंसिडेंस सर. मैंने ये भी सोचा था कि मैं खुद नहीं रिजल्ट खोलूंगा मेरे घर पे सर मेरा भाई है मम्मी पापा किसी से खोल के कहूंगा कि आप बताइए. बट सर उस समय कुछ दिमाग काम नहीं किया सर डायरेक्टली मैंने उसको डाउनलोड किया पीडीएफ. एंड सर जब मैंने उसको देखा सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर मुझे पहले पहली बार में अपना नाम नहीं दिखा था सर. अच्छा. हाँ सर मुझे अपना नाम नहीं दिखा था. मैं सर उसके बाद मैंने पता नहीं सर वो नर्वसनेस थी एंशियसनेस थी क्या था सर बट आई वॉज अनेबल टू फाइंड माई नेम ऑन द फर्स्ट गो. फिर And while I was searching the name of my friend who gave the examination, he was also there. तो मैंने कहा कि देखें इसका हुआ कि नहीं हुआ. सर तब मुझे अपना नाम दिखा सर. इट वाज वेरी लाइक और सर उसके बाद सर मेरे मम्मी पापा नेक्स्ट रूम में थे मैं उनके रूम में गया सर आई टोल्ड देम. और उसके बाद का सर 15 मिनट मेरे दिमाग से ब्लैकआउट है सर. मैं नहीं बता सकता वो मेरे मम्मी पापा बढ़िया बता पाएंगे मेरा क्या रिएक्शन था सर. आई वॉज कंप्लीटली जोन्ड आउट. उसके राइट. 15 मिनट के बाद का बता सकता हूँ लेकिन वो 15 मिनट सर आई एम अनएबल टू टेल राइट नाउ. ऐसे ही लास्ट लास्ट इंटरव्यू में आई वाज टॉकिंग टू प्रगति ऑन रैंक 37. वो तो कहीं सर हम 1 घंटे रोते रहे. हाँ हाँ सर आई लिसन टू हर इंटरव्यू यस सर. जब कोई आप बहुत तो मेहनत करते हो ना इन समथिंग, शी टोल्ड कि शी पुट एवरीथिंग दिस टाइम.
तो जब आ जाता है, मैनिफेस्ट होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता सर। सेम, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बिल्कुल तो ऐसा ही होता है सर। बैक, तो आपने जियोलॉजी लेने का क्यों सोचा था, या कब आया आपके दिमाग में? जी सर। Sir, like tracing very back to my coming back to my days of class 12, I have never heard about this subject of geology. हम्म। सर मेरा जो पहला एम था, आई वॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। मेरा एम था सर कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा। और बीटेक। सर बीटेक की तरफ, एग्जैक्टली सर। बट सर समहाउ आई वाज अनेबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ दिस जेई सर, जो उस समय अभी भी होता है सर। सर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ऑल्दो सर मतलब मेरी रैंक ऐसी थी कि मुझे और भी कोई कॉलेजेस मिल सकते थे, बट सर जब आप किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं एंड यू आर अनेबल टू रीच दैट पॉइंट लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज, तो सर मेरा सर मतलब एकदम से मन उठ गया इंजीनियरिंग से। मुझे लगा कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि इतना मैंने मेहनत की। आई गेव सर 2 attempts फॉर दैट, बट स्टिल आई वॉज लैकिंग बाई सम मार्क्स और दी अदर्स। तो सर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस फील्ड को ड्रॉप करना चाहता हूँ। उसके बाद सर मतलब गवर्नमेंट जॉब सर मेरे को हमेशा से फैसिनेट करती थी। वो बीटेक सर एक टेक्निकल डिग्री में लेना चाहता था, बट अल्टीमेटली आई वांट टू लैंड विद सम गवर्नमेंट जॉब। बिकॉज सर मेरे फैमिली में उस चीज का माहौल है सर। मेरे फादर नीति आयोग में पोस्टेड है, और मेरे चाचा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं। तो सर ये सर ये सब मेरा फैमिली का एक माहौल था। तो सर मुझे हमेशा से ये ड्राइव करता था कि मुझे इस तरफ जाना है। एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेके इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, तो सर ये एक मेरे मन में एक वो था। बट सर ये जो इंजीनियरिंग का आइडिया ड्रॉप हुआ सर, उसके बाद सर माय अंकल, माय फूफा जी, ही इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, ऑल्दो ही इज नॉट अ जियोलॉजिस्ट। बट sir, his friend circle has several hydrologists and geologist people. So he told me that if you are not going into the field of engineering and you aim to get a job in aim to get a government job, and that too in the officers cadre, you should choose this subject, because this subject has enormous potential, not only in the national domain but also in the international domain. So he guided me. He told me that you take this subject, you learn this subject, and like you will surely like it, sir. ओके। सर उनने सर एक इनिशियल स्पार्क दी मेरे को। सर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद सर धीरे धीरे समझ में आया सर, सब्जेक्ट अच्छा लगा। फिर सर फ्रैंकली इनिशियली इनिशियली जब तूने सब्जेक्ट पढ़ा तो अच्छा लगा, इन बीएससी? सर ठीक लगा, अच्छा लगा। सबसे पहले सर बीएससी में तो सबसे ज्यादा जो फैसिनेट करता था इस सब्जेक्ट में, वो फील्ड सर, ट्रिप। सर ट्रिप में आगे जाके समझ में आया कि फील्ड में आपको सबसे खराब कपड़े जो आपके हैं वो ले जाने चाहिए, बिकॉज फील्ड बहुत अच्छी होती है। लेकिन सर बीएससी में हम लोग जितने अच्छे कपड़े होते थे सब लेके जाते थे सर, फील्ड में सब खराब हो जाते थे क्योंकि सर वो एक ट्रिप टाइप का होता था। तो वो सबसे ज्यादा फैसिनेट करता था। और सर मैं इनिशियली सर ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा तब लगने लगा सर, जब मुझे लगा कि मैं सब्जेक्ट में कुछ कर सकता हूँ आगे। हम्म। फाइनली सर मुझे ये लगा कि मैं सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए सर फिर मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सर इसमें डेवलप होने लगा सर। बाय डिफॉल्ट इसमें मेरे को डेवलप होने लगा सर। तो फिर आपका एमएससी में कुछ डिसर्टेशन रहा होगा? जी सर, मेरा एमएससी में सर मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, आई डिड माय डिसर्टेशन इन मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी एंड द एरिया वाज सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन तो उत्तर प्रदेश। चलो, वो तो चलो एमएससी का पार्ट हो गया। व्हेन एमएससी। डिड यू स्टार्टेड अलाइनिंग योरसेल्फ विद द एग्जाम? क्योंकि कॉलेज में तो माहौल उतना होता नहीं है। ना sir, sir, after my BSc third year only, I started to align myself in this examination, sir. Like after MSc, sir, I qualified IIT JAM and different entrance exams of Sagar and all. But I didn't join, sir, these institutes because I felt that in order to clear GSI, you need to have a self study. Sir, this is personally my opinion, sir. I'm not including as a whole. I'm not generalizing this thing, but this is my opinion, sir. I took admission in University of Lucknow because वहां पे सर मेरा घर था, मम्मी पापा लोग सब लोग थे। आई थॉट दैट इट विल बी लाइक माय कंफर्ट जोन एंड आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ वेल। सो सर आफ्टर माई BSc third year, I started aligning my preparation, and my like goal was to crack this GSI examination, sir. वो So आपका ऐसे ही एमएससी कर फर्स्ट ईयर से ही था? MSc फर्स्ट ईयर से ही सर मेरा था। तो भले ही ठीक है, सर तो बहुत था, हाँ। लेकिन गोल को परस्यू करने के लिए कुछ क्या क्या शुरू किया आपने, एज एन अदर देन द सेमेस्टर्स?
हाँ सर, लाइक एमएससी फर्स्ट ईयर में सर उस समय लाइक 2020 में सर हम लोग की एमएससी स्टार्ट हुई थी 20 में। उस समय सर नया नया जीएसआई में पैटर्न आया था, प्रीलिम्स भी ऐड हो गया था सर इसमें। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उससे पहले सिर्फ मेंस होता था सर। तो सर उसमें एक ही मतलब तो हम लोग को ये चीज पता चली कि नाउ देर इज ओवरलैपिंग ऑफ गेट, नेट एंड जीएसआई, एटलीस्ट इन वन स्टेज वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है ऑब्जेक्टिव की, एंड इट काउंटेड 400 मार्क्स। तो सर इनिशियली ये था कि ये जो प्रीलिम्स वाला पेपर हो रहा है इसको अच्छे से टारगेट करें, और जो जीएसआई का वास्ट सिलेबस है इसको सर थोड़ा सा नैरो डाउन करके स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप करके पढ़ें सर, ताकि उससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सर एक साइमल्टेनियसली बैठ के सर उसमें मतलब एक साथ हो सके, अलाइन हो सके सर वो। So how did you start? I mean, standard reference books या standard textbook से पढ़ना शुरू किया क्या? यस सर, सर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू किया। गाइडेंस कुछ सीनियर्स की भी ली, लाइक फॉर इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक, सर विंटर सब लोग कहते हैं, स्ट्रक्चरल के लिए हकिन फॉसन, यही स्टैंडर्ड बुक्स थी सर। गाइडेंस हमारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थी उनसे भी मिलती थी, लाइक अबाउट मोहर सर्किल एंड और मोर ओवर सर आप लोग की भी यूट्यूब पे और ऑनलाइन रिसोर्सेज, लाइक ड्यूरिंग माई स्टार्टिंग एमएससी डेज में, जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ उस पर सर मुझे याद है मोहर सर्किल का मेरा प्रेजेंटेशन था, तो मैंने आपसे ही सर पढ़ा था मोहर सर्किल, आपकी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी थी। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज और इन सब से सर मुझे काफी हेल्प मिली सर इनिशियल एमएससी डेज में सर मुझे। या So this was together with the MSc, right? यस सर, आप दिस वाज MSc टुगेदर। पर आप full on इसमें लग गए? यस सर, कंप्लीटली सर तो आफ्टर। was it also diverted towards GATE and NET या कि केवल यूपीएससी जियोलॉजी? Sir, I was appearing for the examination of GATE and NET. I qualified both the examination twice. Like in NET, I got one time I got rank 17 in NET LS, another time I got 16. And in GATE, sir, also I qualified both the times GATE with a decent rank. But sir, I never opted for going for some kind of PhD program, sir. So, although I was अच्छा, आपको शुरुआत से ही you had कि अब गवर्नमेंट जॉब में जाना है? गवर्नमेंट जॉब में जाना है सर, मैं फिर से कह रहा हूँ सर, आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी जनरलाइज, बट आई थिंक सो दैट आई ट्राई टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन माई कंफर्ट जोन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सर कि एक गोल लेके अगर आप चलते हैं तो परसिवियरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, और उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो आई थिंक इट इट हेल्प मी अलॉट सर इन माई केस। Let's talk about that. So which attempt is this जिसमें आपका हुआ अभी? सर सेकेंड अटेम्प्ट। Second attempt. So take us through the first attempt. सर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल्दो सर सेकेंड अटेम्प्ट ने मेरे को बहुत कुछ दिया है सर, बहुत कुछ सीखा, बट सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज वेरी रॉ अटेम्प्ट, एंड सर इट इज वेरी नियर टू माय हार्ट सर, because in that attempt sir I missed the selection by 4 marks in the unreserved category. But sir, it was my, like in the first attempt sir I was very raw, but I tried to perform well in all the three stages. But since sir the marks are being cumulatively added of prelims, mains and interview, so I fell short of 4 marks sir. So initially sir मुझे तो बहुत, like after the result came last year sir, the vacancies were also very, like they were huge 200 plus, I guess. vacancies. Yes sir, 190 like 216 were published and 190 were recruited. So there was sir एक golden opportunity थी हम लोग के लिए सर सेलेक्ट होने के लिए। so मैंने सर काफी ट्राई किया, एंड आफ्टर सर जब पहली बार रिजल्ट आया तो उसमें नाम नहीं था, तब तो नहीं पता चला सर, बट 2-3 दिन बाद सर मार्क्स आए सर, और मार्क्स के आने के बाद सर जब मुझे दिखा कि मेरा टोटल में सर सिर्फ 4 नंबर कम है, sir I was completely dejected sir. It was the day of 12th Jan in which 2023 in which the result came, and 16th Jan को सर मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि मेरा 4 नंबर से कम रह गया सर। सर आई वाज वेरी, By this time, were you preparing for the next prelims? सर टू बी ऑनेस्ट सर आई वॉज ट्राइंग टू फोकस फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, बट सर दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता है कि रिजल्ट आने वाला है, एंग्शियसनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, वो इतना डिस्कशन होता था, थोड़ा बहुत पढ़ पाता था, लेकिन सर जितना जरूरत होती है लास्ट के 2 महीने में पढ़ने की उतना नहीं पढ़ पाता था सर मैं। तो आफ्टर द रिजल्ट केम सर मैं बहुत डिजेक्टेड फील किया, मुझे बहुत खराब लगा सर, 4 मार्क्स से रह गया सर। बट फिर अपने आप को वापस से सर रिस्टोर किया, और सर रीस्टार्ट जो आजकल चलता है, रीस्टार्ट करके सर नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए सर मैंने अटेम्प्ट लिया इसमें सर। सो ऐसा करके थे सर। लेट्स कंपेयर नाउ थोड़ा सा, बिकॉज इससे पता चलता है कि हाउ यू इम्प्रूव्ड.
So what was the lacking thing in the first attempt that you know improved in the second attempt? So that's a very good question. Sir, initially, sir, I was unable to figure out where I was lacking because, sir, 4 marks you are unable to figure out. Out of 1200, 4 marks are very less. So I was unable to figure out. But time and then, sir, I realized that there is a scope of improvement in all the three stages of the examination in prelims, mains, and interview. Sir, this examination of UPSC examination is completely, sir, it can be defined on the basis of two terms. One is subjectivity, another one is relativity. Sir, when I say subjectivity, sir, it depends like how some like you are answering in mains, you are answering, you are writing the question, but it also depends upon the person who is evaluating your copy. वेदर ही इज आंसर शीट वेदर ही इज लाइक उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सर वेदर आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं एंड सेम थिंग गोज फॉर इंटरव्यू एज वेल कि भाई वो जो सुनना चाह रहा है आप उसको वो बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसे करके सर ये सब्जेक्टिविटी होता है रिलेटिविटी सर ऐसा होता है कि सर रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है आपने अच्छा किया किसी ने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया सर उसका सिलेक्शन हो जाएगा सामने वाले का नहीं होगा बट द एब्सोल्यूट थिंग विच इज देयर इन दिस एग्जामिनेशन इज प्रीलिम्स वही आपके पूरे कंट्रोल में है सर तो मैंने सर ये स्ट्रैटेजाइज किया कि आई हैव टू गिव माई 200% इन दिस प्रीलिम्स जो कि मेरे हाथ में है सो दैट सर मैं जितना ज्यादा प्रीलिम्स में नंबर खींच लूंगा तो अगर सब्जेक्टिविटी में सब्जेक्टिव एग्जाम्स और इंटरव्यू में मेरा उतना शॉर्ट होता है तो इन टोटल मैं उसको बना पाऊं सर इट इज सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सो सर मैंने प्रीलिम्स पे बहुत फोकस किया सो दैट माय सिलेक्शन कुड बी समहाउ बी समवेयर मेंस एंड इंटरव्यू प्रूफ सर दैट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट प्रीलिम्स को अगर कंपेयर करें तो कैन यू शेयर द मार्क्स अगर आपको याद है तो? Yes, sir. I remember it very clearly. Sir, in my first attempt, I got 187 marks in prelims, and in my second attempt, I got 225 marks in prelims. तो ये इम्प्रूवमेंट आपका जीएस में हुआ कि जियोलॉजी में? Sir, geology में हुआ GS में so like last time the paper of GS was a bit easy but this time it was bit tricky that's why the cutoff also dipped to 10 marks usually it is 15 marks but this time the cutoff dipped to 10 marks so GS में सर रिलेटिवली तो बेटर था कंसीडरिंग द पेपर रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं सर तो जैसे बाकियों के नंबर आ रहे थे उस हिसाब से मेरे ठीक नंबर आ रहे थे बट जियोलॉजी में सर मैंने काफी अच्छा स्कोर किया सर जिसकी वजह से उसमें मेरे को थोड़ा सा एज मिला सर ओके तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट तो प्रीलिम्स के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी इन द सेंस कि मेरे को ये पता है कि आप पढ़ रहे हो पेपर लगा रहे हो राइट सर व्हाट इज द थिंग जैसे जनरली लोग मिस करते हैं रिविजन्स राइट यस सर तो वो सब यस चीजें आप कैसे सर क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना चीज एक्यूमुलेट कर पाना अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया इट्स बिकम्स डिफिकल्ट राइट अनलेस आपने बहुत कई बार उसको गो थ्रू किया हो लेकिन आपका सेकंड अटेम्प्ट था तो लगभग कई यस सर रिवाइज हो गया होगा आपका हाँ सर रिवीजन इज द की फॉर एनी एग्जामिनेशन यू हैव टू रिवाइज वेल सर मेरी पर्सनली स्ट्रैटेजी ये रहती थी मैं डे बाय डे का टारगेट बनाता था कि आई हैव टू स्टडी दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड सर लाइक मैं एक साथ कई सारे पेपर पढ़ने की कोशिश करता था टाइम स्लॉट्स में फॉर रिवीजन लाइक अगर मैंने 1 घंटा मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ ली तो अगले घंटा मैं इग्नियस पढ़ता था सो दैट होता क्या था कि एक सबकॉन्शियस माइंड में पीछे चलता रहता था कि हाँ ये भी हो रहा है ये भी खत्म हो रहा है ये भी खत्म हो रहा है ये भी खत्म हो रहा है अगर सर एक पेपर हम लेके बैठ जाते पढ़ने के लिए तो सर वो कम से कम 1 से 2 दिन ले जाता है आप चाहे रिवीजन करिए चाहे पहली बार पढ़िए दूसरी बार पढ़िए जियोलॉजी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स टाइम सो मैंने सर एक ऐसे अपने आप को मतलब टाइम स्लॉट्स को ऐसे डिवाइड किया था दैट आई हैव टू स्टडी एटलीस्ट 3 to 4 पेपर्स डेली ऑन डेली बेसिस सो दैट मेरे मन में है कि हाँ स्ट्रैटिग्राफी भी नहीं छूट रहा पेरियंटो भी नहीं छूट रहा इग्नियस भी नहीं छूट रहा मेटामॉर्फिक भी नहीं छूट रहा क्यूमुलेटिव सब कुछ लेके चल रहे हो क्यूमुलेटिव लेके चल रहे हैं बिकॉज सर वहां पेपर में अलग अलग नहीं आता वहां तो एक साथ आते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा होना चाहिए दैट यू हैव टू स्विच फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक टू पेलियंटो सो यू हैव टू स्विच सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी सो आई ट्राई टू acquaint myself according to these things sir. तो जो टोटल लगभग 10 टॉपिक हैं प्रीलिम्स में या 12 टॉपिक इसके 10-10 क्वेश्चन आते हैं Yes, तो sir. आप मुझे बताइए कि क्या क्या टॉपिक या तो आप जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम सारा लेके चल रहे थे लेकिन होता है ना भी कुछ लोग कुछ पसंद होता है कुछ नहीं पसंद होता है तो Yes, sir. क्या था आपका मतलब कि कहीं स्कोर करना है ज्यादा कहीं छोड़ सकते हैं तो कुछ Yes, sir. स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी यस सर डेफिनेटली सर व्हेन आई सर ये जो स्ट्रैटेजी बनती है ये स्ट्रैटेजी आपको खुद एनालाइज करनी पड़ती है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के PYQ इज द की टू दिस स्ट्रैटेजी
सो सर जब मैंने पीवाईक्यूज देखे तो मैंने देखा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे कांस्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट्स पे। फॉर हम्म एग्जांपल स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, रूल्स ऑफ वी पूछना ही पूछना है उसको सर। वो टाइम एंड देन वो पूछता ही पूछता है, रूल्स ऑफ वी हो गया, नॉर्मल सर डिप स्ट्राइक के क्वेश्चन हो गए, वो पूछता ही पूछता है। बट सर स्पीकिंग ऑफ पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी में सर कभी वो ह्यूमन का इवोल्यूशन पूछ ले रहा है, कभी कभी सर वो इतना डीप चला जा रहा है गैस्ट्रोपोडा में कि सर वो एकदम उसकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज पूछ ले रहा है। तो सर गैस्ट्रोपोडा का आपको बेसिक चीजें तो पता है, बट एम्ब्रॉयनिक स्टेज आप इतना नहीं याद कर सकते। तो जो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं सर, तो वो है कि ठीक है, मैं एक मन में है कि पेरेंटो में अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 6 भी हो गए तो ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट स्ट्रक्चरल के मुझे 10 में से 9 करने, हम्म क्योंकि वो रिपीटेड आ रहा है सर। तो ऐसे करके सर मैं इसको स्ट्रैटेजाइज करता था अपने उसको, और पीवाई क्यू से ही मैंने एनालिसिस की और मैंने सोचा कि मेरे वीक जोन्स क्या हैं, और उसको मैं करने जाऊं भी तो सर वो टाइम जाएगा और उससे कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट स्ट्रक्चरल में सर्टेनिटी है कि उसी से आना है वो सवाल। हम्म तो कितने अटेम्प्ट थे इस बार जियोलॉजी में? 106। 106 अटेम्प्ट्स। वन और जीरो सिक्स अटेम्प्ट सर। negatives अगर तूने देखे हो तो? सर 17, 17 to 18। हाँ। या या राइट, ऑल राइट। अच्छा चलो, अब आते हैं मेंस के आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन पे। तो ये वो प्रीलिम्स के बाद चालू हुई या पिछले अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स के बाद चालू हुई, इस अटेम्प्ट में भी क्या था? सर पिछले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया था मैंने सर। एंड इस अटेम्प्ट में भी सर, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट का मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने आई आई ट्राइड टू आंसर, मतलब मैंने सर प्रिपरेशन ठीक ठाक की थी पिछली बार मेंस की सर। तो वो सर मेरे पास एक्सपीरियंस था पिछली बार का। बट जो रिगरस प्रिपरेशन होती है मेंस की, लाइक कंप्लीट प्रैक्टिसिंग ऑफ द आंसर्स, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि मैं सिलेबस कवर करने में ही लग गया था सर। बहुत ज्यादा सिलेबस था, सर उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था मैं। बस बस बट इस अटेम्प्ट में सर मेरा सिलेबस ऑलरेडी, मुझको लगता था कि काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कवर्ड थे। तो आफ्टर गिविंग माई प्रिलिम्स आई लाइक, मुझे पता चल गया था कि दैट आई विल मेक इनटू द, लाइक आई विल क्वालिफाई दिस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। So without wasting any time for seeing the result, I started my answer writing, sir. And my similarly, sir, मेरी भी यही strategy थी. We have to write 2 papers in a day. So I used to study 2 papers in a day, sir. ओके। अगर पेपर वन के कुछ 2 टॉपिक्स, लाइक पेपर वन इंक्लूड स्ट्रक्चरल एंड सेडिमेंटोलॉजी, तो स्ट्रक्चरल एंड सेडिमेंटोलॉजी सर अगर मैंने सुबह पढ़ा तो शाम को सर मैं पेपर टू में पेलियंटोलॉजी एंड, सॉरी, पेपर टू में इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी या जियोडायनेमिक्स पढ़ता था सर। राइट, ऐसे करके सर मैं अपने डे को डिवाइड करता था राइट, दैट इज दैट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसमें ये सर। बताओ कि मेंस में अपना नोट्स तुमने पहले से बनाया था क्या? बुक पे डिपेंडेंट थे? मतलब व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? नहीं, मटेरियल के कंटेंट डेवलप करना भी एक पूरा काम है उसमें, कि भाई इट्स क्या या लिखोगे सर। कैसे लिखोगे। ये सर इट इज अ वेरी टीडियस टास्क सर। और सर मतलब पिछली बार सर मैंने काफी कुछ, पिछले अटेम्प्ट में सर ये मेरे को एक फायदा जो मिला, खैर सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ। सर जो फायदा सबसे ज्यादा ये मिला कि सर मैंने काफी कुछ चीजें जॉट डाउन कर ली थी अपने नोट्स पे, और सर मैं उसी से स्टिक किया। बट सर मैंने उसको इनरिच करने की कोशिश की। लाइक सपोज करिए सर, लाइक सपोज एक कोई आंसर है सर इग्नियस पेट्रोलॉजी का, तो सर मैंने उसमें एक पहले जैसे सर मैंने एक बुक को कंसल्ट करके वो आंसर बनाया था। बट दूसरे अटेम्प्ट में सर मैंने उसको, लाइक जो प्रीवियस वाला आंसर था उसको तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही पढ़ा, और जो टाइम बचा सर उसमें मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, डिफरेंट बुक्स थे, जो मुझे ऐसा लगा कि आंसर को मेरा थोड़ा सा और इनरिच कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली साउंड आंसर बना सकते हैं, वो सर मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने। बट बेसिक्स मैंने उधर ही रखे थे सर, पुराने वाले ही। करेक्ट। और फिर जी सर। होता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग आंसर्स, तो वो कितना अमाउंट में हुआ था? मतलब कितने ही लिखे होंगे तुमने अगर लिखा होगा? सर सर लिखे तो सर, लाइक काफी आंसर्स मैंने प्रैक्टिस किए थे सर। और स्पीकिंग सर, लाइक आई एम नॉट 5 साल आस्किंग के तो एग्जैक्ट पाँच, नंबर ऑफ लाइक कोर्स, लाइक एग्जैक्ट सर, नंबर नहीं, बट जस्ट सब टू गेट एन 5 साल, आइडिया। सब 5 to 6 years के पेपर्स तो सर मैंने बाई हार्ट सॉल्व किए थे, पूरे पूरे 5 to 6 years के, लाइक ईच एंड एवरी शॉर्ट एंड ईच एंड एवरी लॉन्ग। एंड उसके पहले के सर जो मुझको लगता था कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो नहीं करता था। बट सर जैसे पेपर 3 में न्यूमेरिकल्स आते हैं सर, तो न्यूमेरिकल्स करते थे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट स्टैटिक चीज से नहीं आ रहे हैं, तो उसको लिखने की कोशिश में सर उसको करता था सर। बट 5 years के पेपर आई सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो तीनों पेपर में, क्योंकि तुमने जी सर। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री में सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा कहाँ पे गया?
सर पेपर थ्री, सर पिछली बार पेपर थ्री की वजह से ही मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली पीछे रह गया था। और उस पे सर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि सर वो एक ऐसा पेपर है जो कि सर हमारे मास्टर्स और बैचलर्स के कोर्स से अलग है उसकी। कुछ पहली यूनिट थोड़ा सा सर वो ओवरलैपिंग होती है, बाकी एग्जाम से भी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो बाकी की जो यूनिट्स है सर, उसमें इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का एस्पेक्ट आता है, पेट्रोलियम जियोलॉजी, कोल एक्सप्लोरेशन एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे टेक्निक्स। तो सर वो थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, थोड़ा डायनेमिक टाइप का पेपर हो जाता है सर वो। तो उसको कवर करने में सर मेरे को काफी टाइम लगा था सर। राइट। यस फिर सर। आता है इंटरव्यू का फेज। सो इंटरव्यू, यस सर। उसके लिए मतलब मेंस खत्म होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा था कि हो जाएगा, या वेट किया नहीं तुमने? सर, नहीं सर, नहीं सर, मेंस खत्म होने के बाद सर, लाइक इन ऑर्डर टू मेक इन टू दी टॉप 40 सर, आपके हर पेपर में सर ऐसे नंबर होने चाहिए कि आप टॉप 40 में हो सर, तभी आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। तो सर आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द मेंस सर। आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर दैट या आई विल बी देयर, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड वेट फॉर द मेंस सर। अच्छा, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू आपका कोई भी पेपर छूटा या टाइम का कुछ इशू हुआ इन मेंस? यस सर, सर टाइम का इशू नहीं हुआ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की थी ठीक ठाक, तो मुझे टाइम का ऐसा इशू नहीं लगा इस बार। बट पिछली बार था। बट सर पेपर सर डेफिनेटली मेरे को पूरा पेपर 200 मार्क्स का नहीं आता था सर। तो जो मेरे को नहीं आता था सर, वो मैंने मैंने रॉन्ग आंसर करने की कोशिश कोशिश नहीं की। मैंने सर उस पेपर में, मतलब सर अगर बहुत ज्यादा फॉरेन क्वेश्चन आ गया एकदम, कि एकदम मैं एकदम उससे नहीं, आई एम नॉट नॉट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस थिंग। लाइक सर आई रिमेंबर इन पेपर टू दे आस्क्ड मी अबाउट फ्लैश फिगर। सो फ्लैश फिगर सर मेरे दिमाग में एकदम क्लिक नहीं कर रहा था, और तो सर मैंने कुछ लिखने के बजाय सर ऐसा मैंने कुछ तो ब्लैंक छोड़ दिया सर। और बाकी सर जो मेरे को आता था उसमें सर 2 या 3 लाइन मैंने लिखा था। खैर इस बार वो उन क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा कम था। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो छूटे, और कुछ ऐसे थे जो मैंने पूरे फिल नहीं किए, थोड़ा थोड़ा लिखा जितना आता था सर। बट सही लिखा सर, जितना लिखा सर। नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। यस और सर। आपका स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हुआ था कि एक बॉडी होगी, एक इंट्रोडक्शन होगा, एक कंक्लूजन होगा, या? हाँ यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, मैंने उसको मेंस में सर मैंने कोशिश की सर, लाइक मैं पॉइंट वाइज उसको आंसर लिखने की कोशिश करूं सर। लाइक आई ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ द फ्लो चार्ट्स, एंड लाइक थोड़ा सा और हाईलाइट करे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर। एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, और सर टेक्निकली थोड़ा सा आंसर को अपना एक साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख के, रादर देन राइटिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, try to include scientific words and scientific terminology so that it could appeal more. एंड ये सर, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था सर मेंस के लिए। फिर आ गया मेंस का रिजल्ट। यस सर। उसके बाद व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन कि चलो भाई अब इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें? सर सर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मेन सर, लाइक सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ये थी कि मुझे दोबारा यूपीएससी जाने का मौका मिलेगा सर, फॉर इंटरव्यू सर। इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सो लास्ट लास्ट टाइम सर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, तो मैं सबसे ज्यादा खुश था कि मैं दोबारा यूपीएससी जाऊंगा। और सर लाइक प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू सर, इट इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। तो कंपटीशन सर रिलेटिवली कम होता रहता है सर। तो सर ऐसा लगता है अब एक सीट पे ढाई ढाई या तीन बच्चे हैं, 2.5 to 3। तो दो ही बच्चों को पीछे करना है, तो चांसेस काफी ब्राइट है अगर हम अच्छा कर ले जाएं। तो सर वो चीज थी। तो सर आफ्टर द मेंस रिजल्ट, गेटिंग इनटू द फाइनल लिस्ट सर, वो मेरा होप तो था सर, वो इंक्रीज कर गया सर, कि मैं बहुत दूर नहीं हूँ सिलेक्शन से, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो सकता है सर एग्जैक्टली हो जाए। इसका कोई स्ट्रेटेजी, मतलब करंट अफेयर्स और सब आप यस। कैसे किया? ये सर, सर मेंस के लिए, सर सॉरी इंटरव्यू के लिए सर, लाइक करंट मैंने न्यूज़पेपर तो सर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर। मेरी आदत है सर, बीच बीच पे कभी छूट जाता है, बट लाइक अगर कोई एग्जाम्स आ रहा है, बट न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर्स के साथ मुझको ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई सर। बट करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली सर, वो अपने ही फील्ड से पूछते हैं कि भाई आप में रिसेंटली जीएसआई का विजन क्या है, जीएसआई करना क्या चाह रहा है, what is like the new lithium reserve which is found in Jammu and Kashmir Riyasi district, how can it can be useful to the country, because सर जो चेयरपर्सन है सर, उसको खाली यही उसको पूछना है सर, कि कैसे भाई जीएसआई करना क्या चाह रहा है, क्यों गवर्नमेंट इतना पैसा लगाए जीएसआई के ऊपर, हाउ कैन बी इट बी प्रोडक्टिव, दिस इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1851, इसका क्या तब से क्या क्या इवॉल्व किया, कि क्या इसका। तो सर उस एंगल पे मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी सर।
कि मैं उस पर थोड़ा सा फोकस तो करूँ। नोट्स भी आप रिवाइज करके मतलब किया ही हुआ, थोड़ा बहुत तो किया ही हुआ। नहीं सर, बिल्कुल सर, क्योंकि बाकी जो पैनलिस्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन, दे ट्राई टू डिग इनटू द डायनामिक एज वेल एज द स्टैटिक concept of the subject, sir. So, and if you are unable to tell the basic definition of say, anything which is asked, like in this interview, sir, I remember they asked me about what is extinction. So extinction sir. So अगर आप extinction एक proper scientific term में नहीं बता पा रहे, तो I think it would give a negative impact, because this is a very basic thing. And geology, sir, being a theoretical subject, I think it needs more and more revision, sir. आप कितना भी रिवाइज करिए, आप भूल जाएंगे sir. तो रिवीजन तो सर इट्स वेरी आई इंपॉर्टेंट सर. रिमेम्बर आपकी जो सेशन लिए थे हमने मॉक के, उसमें एक्सटेंशन पूछा था मैंने एक दो बार। हो सकता है, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू जनरली री. क्वेश्चंस होते हैं ना हाँ दिमाग में जो पूछे जाते हैं। हाँ, एक्सेंट. डी डे की बात करते हैं, इंटरव्यू क्या आप रूम में एंटर करते हो, राइट? यस व्हाट सर, यस सर. वाज लाइक, व्हाट वाज द टेम्परामेंट लाइक? सर लाइक ऑल्दो सर इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, बट एंशियसनेस पहले अटेम्प्ट जितनी थी सर, नर्वसनेस भी पहले अटेम्प्ट जितनी थी सर. यू सर, वो पूरा रश ऑफ ब्लड आता है. तो सर लाइक central, when we were there in the sitting in the central hall for the document verification, I was very inquisitive of the panel, कि panel कौन सा है, panel कौन सा है. So I was keep on asking with the member who is concerned there, who is filling the form and all that, कौन सा panel पढ़ा है क्या. तो he told me that XYZ panel पढ़ा है आपका. मेरा सर बीबी स्पेंसर का पैनल था. सो वहां पे सर उसके बाद सर लाइक आपको बाहर ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद सर आपको इंटरव्यू रूम के बाहर बैठाते हैं सर. जब दूसरा बंदा निकलता है सर, तब आपको अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए दे रहा. सो एट दैट टाइम सर ऑल दी फ्लैश बैक्स कम इन टू योर माइंड सर. इट्स वेरी ट्रू सर. मेरे माइंड में तो आता है सर कि किस तरीके से सर वो जर्नी रही है मेरी, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट अटेम्प्ट वाली. पूरी एक साल की साइकिल है, और ये 30 to 35 minutes will decide that whether I'll make into the list or not. So I have to completely utilize and capitalize these 30 minutes, sir. So that was there, sir. But जैसे आप यूपीएससी ये मतलब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं सर, मतलब तो पैनल इज वेरी कॉर्डियल सर. और Yeah, of course. हाँ, पैनल इज वेरी कॉर्डियल सर. और फिर बहुत अच्छा लगता है. वंस यू स्टार्ट गिविंग द आंसर, ऑटोमेटिकली सर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है सर. What was the first question, if you remember? सर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Oh, Yes, sir. They asked me how artificial intelligence is important, and how it is different from Chat GPT, is different from Google search engine, and GSI को artificial intelligence या फिर Chat GPT से कैसे हेल्प मिल सकती है, और टेक्नोलॉजिकली कैसे अपग्रेड कर सकता है GSI अपने आप को. right. And sir, chairperson sir, he asked me about the mineral potential of your state and different state as well. So यहाँ से सर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था सर. How was that 35 minutes? मतलब अच्छा गया था आपका? मतलब what Sir, do I you was, think? sir, I felt that like while I was giving the answer, I tried to try to maintain the composure and like give a very structured answer. So मुझे ये लग रहा था कि सर जो वो पूछ रहे थे, वो मैं उनका प्रॉपरली स्ट्रक्चरली उसको आंसर में दे रहा था सर. एक दो बार सर उन लोगों ने सर गुड भी बोला मेरे को. So I felt that they were satisfied. And after giving the interview, sir, I told my father, no one else. I told my father that, Papa, I felt that the panel was completely satisfied. And I feel that they will give me good marks, because the chairperson, he was very satisfied. In the end, he asked me a question, and he told me good and have a great day. And I thought that he will give good marks to me, sir. And then you scored 140, right? Yes, sir. I got 140, sir. This is among the highest. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this was the whole journey from prelims means. अब Interview, yes, sir. ask you this, कि प्रीलिम्स की जब बात करते हैं, एज इन अब मैं आपकी प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? ठीक है सर. अबाउट इन Yes. जनरल, व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक शुड नॉट बी लेफ्ट, और क्या चीजें जरूरी हैं व्हेन यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स? एज इन आपके दो पूरा आपने अटेम्प्ट दिए हैं. सो Yes, इफ sir. समवन वांट्स कि आपसे एक जिस्ट निकालना चाहे वो, कि प्रीलिम्स में क्या चीजें नहीं करें या क्या करें? ओके सर, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1, जो कि हमारा पहले शिफ्ट में होता है, दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज. सर, आई फील दैट 5 subjects are very important.
First is physics, second one is chemistry, third one is environmental science, fourth one is polity, and fifth one is current affairs and uh, some aspects of like biology, current affairs and biology. But फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सर जियोफिजिस्ट और जियोकेमिस्ट वो भी सर सिमिलर पेपर अपीयर करते हैं, मतलब जीएस का पेपर कॉमन होता है सर। तो दैट्स वाई सर जो यूपीएससी का माइंडसेट होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें खूब देता है। सो माई सजेशन टू ईच एंड एवरी वन इज दैट यू शुड लाइक फोकस ऑन दीज 5 सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन स्किप हिस्ट्री. There's no point in that. You can skip history. You can like skip all the other subjects of general studies. But physics, chemistry, environment, and biology and polity, you should not like skip. These are the important subjects, and try to see the previous year question paper of GS. Like they are increasing the level of physics and chemistry as well. Because pehle sir they used to ask very direct questions, but now they are getting a more of a numerical approach. But numerical भी sir it is restricted to only electrodynamics and like magnetism and free body motion. तो ये 3 पेपर तो ये फिजिक्स में ये 3 पोर्शंस तो आप पढ़ के जाइए। इससे सर आप फिजिक्स के सवाल बना ले जाएंगे। और केमिस्ट्री में ही सर ऐसे पीरियोडिक टेबल, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये आप पढ़ के जाइए। इट इज वेरी सिंपल सर। इससे आप क्या होगा ना सर, यू विल एबल टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, एंड दैट इज मोर देन इनफ। ट्राई टू स्कोर समवेयर अराउंड 35 to 40 मार्क्स इन जीएस कंसीडरिंग लास्ट ईयर पेपर्स ऑफ 2023 and 24, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ये जीएस में सर ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जियोलॉजी में सर मैं सबसे मतलब सर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ टू बी वेरी रॉ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट मतलब एकदम से पढ़ लीजिए। यू शुड लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय हार्ट एंड द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। लाइक सर अगर यूनिफॉर्मिटारिज्म के बारे में पूछा गया है तो उसके नीचे कैटास्ट्रोफिज्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर वो अगले साल उसको कैटास्ट्रोफिज्म पूछ लेते हैं सर। वो पहला उसी क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहा है हर साल वही आ रहा है सर, उनका फिक्स ट्रेंड है सर। अगर आप उसको अगर पीवाईक्यू को एनालाइज करें तो आप 50 to 60% पेपर आप एनालाइज कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इसी के अराउंड घूमेगा सर। पहले सर वो मिनोलॉजी में लाइक एक्सोल्यूशन इन फेल्सपार, दे आस्क वन टाइम दे आस्क हटन-लोशन इंटरग्रोथ, अनदर टाइम दे आस्क बॉगलेट इंटरग्रोथ। वो घुमा घुमा के पूछते हैं सर वो। तो इससे सर काफी हेल्प मिलेगी सर। तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। एंड जियोलॉजी में बिकॉज सर द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो यू ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन अ वेरी मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दें, आपको नहीं आ रहा तो भी आप कर रहे हैं, बट ट्राई टू नेगेटिव हो जाएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट लाइक एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि आप यू विल मेंटेन 100% एक्यूरेसी इन 120 क्वेश्चंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सो दैट अगर निगेटिव होता है तो उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े उसका, मतलब सर नॉट इफेक्ट। ये सर ये सर मेरी स्ट्रैटेजी। ओके, एंड फॉर मेंस? So for main, sir, similar thing goes for it, sir, like PYQ, sir. I'm focusing more of the, because in UPSC, sir, PYQ is the only thing which you should एक्चुअली बहुत रिपीटेशन होता है, बहुत बहुत ज्यादा। सर बहुत ज्यादा सर। अपना सब्जेक्ट एक स्टैटिक सब्जेक्ट है सर, देयर इज नो डायनामिक एस्पेक्ट इन दैट एज सच। 70 to 80% it is static subject. So structural geology will not change, Mohr circle will not change, its formula will not change. So practice as much as you can. Try to write the definition, and by practicing now sir you will try to write the answers in a very structured manner including the technical terms as well. So आपका आंसर एक साइंटिफिक और टेक्निकली साउंड आंसर लगेगा सर। सो पीवाईक्यूज उसमें भी आप प्रैक्टिस करिए और सिलेबस सर उसमें ना छोड़िए। मेंस में ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस, और रादर आई शुड से वर्ड ऑफ द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। उस वर्ड से सर एकदम क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग। अगर कोई वर्ड लिखा है सिलेबस में, उसी से सर आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर आ गया 10 to 15 मार्क्स। सो इन टर्म्स ऑफ मेंस सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। तो मतलब अभी आपका प्रीलिम्स का और मेंस का यस सर। ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंस प्रीलिम्स है, क्योंकि वो है आपके डायरेक्ट मार्क्स, राइट? उसमें डायरेक्ट आपका मार्क्स, इट इज सब्जेक्टिविटी एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही नहीं है है सर। या गलत है?
राइट? यस सर, यस मतलब सर। मैं भी यही बोलता हूँ जनरली स्टूडेंट्स की, अगर यहाँ पे आप ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो यू हैव सम लेवरेज इन मेंस। एवरेज, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड सर। यस सर। तो इसको मतलब मैं जनरली ये देखा है मैंने अक्सर कि जनरली लोग प्रीलिम्स को पता नहीं क्यों हल्के में ले रहे हैं, इट्स वेरी, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन वो चीज हम्म। दिमाग से नहीं जाती, वो प्रीलिम्स वर्ड से ही लगता है कि ये तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स नहीं है भाई, वो पूरा क्यूमुलेटिव ऐड हो रहा है। एंड क्यूमुलेटिव ऐड हो रहा है सर। राइट, तो वैसे तो आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल दिस थिंग कि भाई इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, सो दैट यस सर। आपका अगर थोड़ा कुछ मान लो गड़बड़ हो भी जाए तो यू आर टेकन केयर ऑफ। Taken care of, definitely sir. Prelims is a very important stage because sir it is absolute, it is absolute in nature. So it is very important, ये पूरा आपके हाथ में। पूरा का पूरा। और तो it's very important sir, that's very true sir। Right. Yes sir। So now let's talk. What was the role of geology concept in all these three stages? Sir, geology concepts, sir, tracing back to the history, sir, it played a very important role in not only like this preparation of a GSI, but also strengthening my concepts of geology, sir. Sir, like I remember, like I started my preparation by studying standard books of geology. बट सर व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर्स, मुझे लगता था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम एबल टू लाइक गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक ठीक है ये रॉक है, इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ये है, आई एम एबल टू गेट। बट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलाइन एंड थ्योरेटिक, आई वाज अनएबल टू फिगर इट आउट। बस एक है, ये पता है कैलकुलाइन क्या है, थ्योरेटिक क्या है, बट क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज ट्रेंड्स, ये सर मैं फिगर नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, so, sir, some of my friends suggested me that you should take an coaching for that, and they were enrolled in your JAM as well as GateNet program. So they told me that the subjects, sir, आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते थे, तो जो सब्जेक्ट्स आपको वीक लग रहे हैं, तो उसमें आप जो है सर की असिस्टेंस ले लीजिए, यू ट्राई टू स्टडी दी सब्जेक्ट्स फ्रॉम जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। सो आई सेड ओके। तो सर मैंने स्टार्टिंग में, आई स्टिल रिमेम्बर सर, आई लाइक आई टुक स्ट्रैटिग्राफी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, and sir geochemistry, these three subjects and four subjects sedimentology। सर ये चार सब्जेक्ट मैंने लिए एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियोज, रिवाइजिंग। और सर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि अच्छा ऐसे भी होता था सर। crust is formed by the partial melting of the upper mantle, that I learned after my MSc। How the upper mantle is depleted, how the lower mantle is primitive and enriched, why it is मतलब LILE rich or LRE rich as compared to upper depleted mantle। These were the things sir which you told me। सर आप, सर आपने सर बहुत हेल्प किया सर उस समय। सर मुझे याद है सर, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियो केमिस्ट्री, इग्नियस पेट्रोलॉजी, सर आपने ही टेकअप किया था जो मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए थे। एंड इसमें सर मैं स्पेसिफाई भी करना चाहता हूँ सर, द बेस्ट, सर आपने सभी अच्छा पढ़ाया। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तो सर इट वाज लाइक एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सर। मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहता और सब्जेक्ट्स को, बिकॉज सर आपने सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाए। आपने सर इंटरेस्ट डेवलप करना सिखाया सब्जेक्ट में, कि इस सब्जेक्ट को अदर वे राउंड भी हम सोच सकते हैं सर। जियो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, वो जो मैथमेटिक्स की सीरीज आती है ई की पावर एक्स वाली, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे याद है सर आपने उसको सॉल्व करवाया था ई की पावर एक्स की सीरीज को खोल के, नहीं तो सर वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है न्यूमेरिकल उसको करना सर। तो सर ये सब चीजें सर आपसे सीखने को मिली। बट सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है सर, और मैं कोई भी एग्जाम उसके बिना नहीं पढ़ के जाता हूँ, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन पेलियोंटोलॉजी यू टॉट सर। वो जो पूरा 4.6 बिलियन ईयर्स टू दिस सीनोजोइक, सर आपने जो पूरा एवोल्यूशन बताया सर, स्टार्टिंग फ्रॉम इन फर्स्ट लाइफ, स्टोमेटोलाइट्स, एडियाकारा एंड दैट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, वो सर मेरे को बहुत हेल्प किया सर। मतलब इट हेल्प मी अलॉट, इट हेल्प मी लाइक कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे जियोलॉजी आ रही है, बिकॉज आई वो नो द एक हिस्ट्री। एपिसोड वाइज समझ में आ जाता है। episode, sir, I know the history that, yeah, from 4.6, a broad history that from 4.6, that is from the Hadean or Archean till the Cenozoic, I have an idea, broad idea कि हाँ इस पीरियड में ये चीजें हुई, ये इंडेक्स फॉसिल्स हैं, इस पे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, यहाँ सबडक्शन है, ये ऐसे करके। इट हेल्प मी अलॉट सर। कोई भी एग्जाम सर, वेदर इट बी प्रीलिम्स, वेदर इट बी मेंस और वेदर इट बी इंटरव्यू, मैं ये चीज पढ़ के जाता ही जाता था सर, and it helped me a lot sir। yes राइट। sir। और नहीं मतलब मेरे को भी ये लगता है कि अगर किसी वजह से या किसी भी तरीके से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है यार।
बहुत आसान रहती थी। राइट। तो वो जो कोर है ना उसका, कि क्यों कर रहे हैं ये, वो अगर समझ में आने लगे कि क्या यस सर। है बैकग्राउंड उसका, जस्ट जार्गन याद करना वो तो करना ही है आपको एनीवे, राइट। यस सर। पीछे अगर यस सर। आपका यस। मोटिवेशन अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक वही हमारी यहाँ फिलोसफी रहती है कि एक बार इंटरेस्ट डेवलप करवा दें, बाकी पढ़ना तो बच्चे को खुद ही है, हम तो भाई गाइड कर देंगे, बता देंगे कुछ चीजें। यस सर, डेफिनेटली सर। तो सर वो काफी मेरे को हेल्प किया सर। और लाइक मेरे सर जो कॉन्सेप्ट्स, लाइक योर नेम ऑफ द कोचिंग इज जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, और इट इट हेल्प मी इन बिल्डिंग माय कॉन्सेप्ट सर। बाकी तो एग्जाम्स वगैरह तो सर जो थे वो तो होते रहे सर। एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए ना सर, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गेट नेट एंड जीएसआई, एटलीस्ट द स्टैटिक जियोलॉजी। स्टैटिक राइट। जियोलॉजी एंड गेट नेट एंड जीएसआई इज सेम। उधर सर एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, जियोफिजिक्स आते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट फैक्ट। But the static geology of igneous petrology, if you know igneous petrology, you can solve the paper of GATE, you can solve the paper of NET, you can solve the paper of GSI prelims. There is hardly any difference. राइट। तो इग्नियस ही है सर। तो इट हेल्प मी अलॉट सर। जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे सर, इट हेल्प मी अलॉट सर। एंड सर इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटरव्यू सर, ये आप लास्ट ईयर भी सर मैंने आपका प्रोग्राम लिया था मॉक इंटरव्यू वाला, सो उस समय भी था। और सर इस बार तो सर डीडीजी सर आए थे, तो वो तो सर मेरे को काफी हेल्प किया। इवन सर आई वांट टू शेयर दैट सर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट क्लाइमेट चेंज हम्म। in my second interview. I have given two mock interviews. So in my second interview, sir asked me about the concept of climate change. So I was trying to answer this question, but sir guided me that being a geologist, you should say that climate change is not a new thing. वो तो पुराने यस। से होता ही आ रहा है। वो तो जियोलॉजिकल पास्ट है, वो तो होता ही आ रहा है क्लाइमेट चेंज। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज वी आर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, बट considering the fact that geological past, it has already happened in different types, different eras, periods and time scale. So similar question was asked in my interview. How do you see climate change? So, sir, I tried to answer in the contemporary time as well, but focusing on the part that, sir, being a geologist, we should also consider the geological past as well. So it is not a new thing. So एंड I दिस think, sir, they एनरिचेस, were. इससे काफी ज्यादा आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, बिकॉज या Yes, sir. मुझे ऐसा लगा sir, because there were no follow-up questions related to that. So I thought that they would be satisfied from my answer that yeah, he's not only focusing on the contemporary issues, but thinking in the domain of geologist as well. राइट। हाँ, So इससे एक uh, पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाँ, हाउ ही थिंक्स एज हाउ अ ही थिंक्स, जियोलॉजिस्ट। यस। तो सर मॉक इंटरव्यू से मेरे को काफी हेल्प मिली सर इस बार। जैसे फर्स्ट मॉक इंटरव्यू था वो सर डायनेमिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट, थिंकिंग एबिलिटी, एंड आफ्टर लाइक द लास्ट सेशन, लाइक द लास्ट panelist, he asked me about my hobbies and like the general studies question as well. तो वो भी सर एक थिंकिंग एबिलिटी सर थोड़ी सी इंप्रूव हुई सर। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पॉन्टेनियसली कैसे थिंक करते हैं। वहां पे वो सवाल पूछ रहे हैं तो स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन बिकॉज यू हैव नॉट मच टाइम। सो दैट इज अ गुड मेंटल एक्सरसाइज सर। सो इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। राइट, राइट। कितना लंबा चला था आपका इंटरव्यू, जस्ट इफ यू रिमेम्बर? 35 मिनट्स। 35 to 40 minutes, गुड। 35 मिनट सर। अच्छा, तो बाइक यस। तो आप 35 मिनट, तो अंदर जाने का बाहर जाने का टाइम देखा था क्या तुमने? सर मेरे बाद जो था सर बंदा, वो सर मेरा फ्रेंड था। तो आई टोल्ड हिम कि यार तुम बताना मेरा कितना चला। तो क्या ओके ओके, सो ही टोल्ड मी दैट आफ्टर दैट ही टोल्ड मी दैट योर इंटरव्यू वाज 35 मिनट्स। मैंने कहा ओके ओके सर। वन क्वेश्चन अक्षत आई आस्क एवरीवन, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हाँ। ऑल्दो यू गॉट सिलेक्टेड और बहुत अच्छा हुआ सब, लेकिन हाँ। लुकिंग बैक, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू वुड हैव नॉट डन तो और अच्छा होता, या ऐसी कोई चीज जो तुमने सोची थी या यस नहीं सर। सोची थी और बाद में लगा कि यार ये भी कर लेते तो यस सर। बेटर हो जाता? सर like controlling your breath, that is very important sir. Sir, I feel that because of anxiousness, pressure, overthinking sir, like in prelims also sir, I although sir I tried to score my best, but sir there were some of the silly mistakes when I like tallied my questions from the answer key. There were certain silly mistakes which I which occurred. So like it was because of the loss of breath sir. You have to control your breath. आपको थोड़ा सा calm and composed रहना है in each and every stage sir.
Like when in similar thing goes for the mains as well, sir. Like in mains, when my paper was lagging, so I tried to write in a very like haphazard manner. Like I forgot to make more in a structure, like make my content more in a structured manner. So in my case, sir, the loss of breath was like the control over the breath was a bit At the uh, time when you get anxious. at the time when I get anxious. Yes, sir. That was a thing which I have to control in my future perspective as well, sir. Because I have to think over it and try to improve it as well, sir. Right, right. Very good, very good. Yes, sir. अच्छा, Yes, now sir. coming towards the end, अब ये last phase है हमारा. तो Yes, sir. tell us, what do you want to suggest to upcoming aspirants broadly? Sir. Yes, sir. Sir, never give up. Sir, the difference between the candidates who succeed and who don't is like they don't give up, sir. Sir, it is the like persistence in these days of struggle, frustration, and hardships. So how persistent you are, how मतलब सर कैसे आप उसको फेस कर रहे हैं, that is very important, sir. Because sir, when you look back into the days of this frustration and hard work, sir, it will strike as one of the beautiful memories. वो सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट यू डोंट हैव टू गिव अप. काफी Hmm. दिन ऐसा आएगा सर जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, काफी टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बिकॉज सर दिस इज एन एकेडमिक लाइन, इधर दिस और दैट, यहाँ पे कोई बीच में नहीं है सर कि हम बीच में कुछ हो जाएगा तो हम इधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर. आप इफ यू फेल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्वायर वन. तो अगल बगल सर लोगों को आप देखते हैं कि वो अच्छा करते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, तो कभी कभी सर वो लगता है कि या वी आर लैगिंग बिहाइंड और कैसे हम जो है कॉम्पीट करेंगे इसमें और क्या So did करेंगे. you तो also सर went through this phase? सर डेफिनेटली सर आई What वेंट टू was the दिस फेस. strategy to, pull yourself up again? सर जस्ट द मोटिवेशन दैट this is the best thing, Hmm. this is the best thing. So if I'm because and sir secondly sir I have chosen this path for me, so I Hmm. can't complain to anyone. This is Hmm. the path which I have chosen. So if I'm going to enjoy the taste of the success, I have to also like Get the tip. face the failures and hit the rock bottom as well, because it is completely a sinusoidal wave, sir. There are highs and lows as well. So you have to be ready for it. If you want to taste the success, you have to face the hard work and challenges, frustration, everything, sir. Just so So that लोगों को perspective मिले, can you share any incident where you felt low और फिर क्या हुआ? yes, sir. Like, sir, sir, like there are so many incidents that I'm unable to like how to channelize them. Anything which is So, at the top of your head. Yeah. uh, so the top of sir, like, sir, I am the like one of the eldest in my family, in the paternal side as well as on the maternal side. Oh. So, and sir, apart from me, everyone is employed. सो इट थॉट मी कि यार इनका भी नौकरी हो गया, उनका भी नौकरी हो गया, सब लोग सर दे आर बीइंग गेटिंग एम्प्लॉयड, दे आर डूइंग देयर जॉब्स, और सब सर एम्प्लॉयमेंट इज इन अनदर एस्पेक्ट सर. एवरीवन इज मूविंग अहेड इन देयर लाइफ. I have to go round and round in a circular loop, studying again and again, studying again and again. I am also investing so much of time, like 7 to 8 hours studying, but gaining, sir, it is a very long term in this thing. There are not no short term gains. यहाँ पे सर एकदम लॉन्ग टर्म वाला गेन है, बाकी शॉर्ट टर्म गेन्स ऐसे इसमें कुछ नहीं है. और जो है सर वो खुद के लिए ही है, सामने वाले को. इफ यू क्वालिफाई प्री, इट इज फॉर यू. इफ यू क्वालिफाई मेंस, इट इज फॉर यू. बट इफ यू क्वालिफाई into the final result, it is for everyone. Right. So that is the main thing, sir. What मुझे ऐसा लगता है So सर. how did your family, मतलब आपका support पूरा घर से मिल रहा था एकदम? ये सर पूरा सर घर से सर बहुत सपोर्ट मिला था सर. माय फादर, माय मदर, दे कंप्लीटली लाइक in my past attempt sir, when I failed sir, I was like very dejected, demotivated, but my father told me, अरे यार, you are such a young blood, you have given one attempt and you are so close to the selection. क्या भाई 4 नंबर से आपका रुका है, अगली बार जो है आप टॉप 4 की रैंक में हो ही जाओगे. आपसे आप तो 4 नंबर से रुका है, तो यू आर वेरी क्लोज टू दी सिलेक्शन, तो आपको तो होना ही होना है अगली बार. तो सर दे ट्राई
try to motivate me, and सर बहुत सपोर्ट किया सर, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया सर, बिकॉज सर पापा तो ऑफिस चले जाते थे, मम्मी पूरे टाइम मेरे घर पे रहती थी। कभी कभी सर बहुत डिमोटिवेटेड होता था, कभी कभी सर वो गुस्सा भी आता है अंदर से, तो सर वो थोड़ा इधर उधर निकलता है सर, इट इज वेरी ह्यूमन बिहेवियर। सो शी टॉलरेटेड ऑल दीज स्टफ्स, एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर मतलब the valuable guidance of teachers, your valuable guidance, everything, my hard work, everything aligned into a straight line and converted into the final result. So that I is all. asked this. What was the reaction of your mother? मतलब she has seen you through ups and downs पूरा, तुम क्योंकि घर में ही थे. Yes sir, yes sir. What was her Sir, reaction? my सर सब मेरे सामने तो वो ये कहती हैं कि ठीक है, यू हैव अचीव्ड इट, बट प्लीज बी डाउन टू अर्थ। हाँ, ये ऐसा नहीं कि आपको हवा में उड़ना है ये वो, बट आई हेयर हर टॉकिंग टू अदर फैमिली मेंबर्स, सो शी यूज्ड टू से दैट बहुत मेहनत की, लड़के ने बहुत मेहनत की, आई हैव सीन हिम स्टडिंग डे एंड नाइट एंड ही हैज वर्कड हार्ड अ लॉट। बट मेरे सामने सर वो यही कहती है, ओके तुमने मेहनत की है, ट्राई टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, बहुत मेहनत से पाए हो, इसको कभी मत भूलना, एंड ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने लगे, ये वो करने लगे। सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ माय मदर सर। यस तो ये रैंक के बाद से अभी तक क्या चल रहा है घर में? सर, रैंक के बाद से कितना दिन सर हो गया, मतलब कब आया है रिजल्ट आपका? सर 23 23 तो हो सर, गया है अब तो 10 दिन हो गए सर लगभग। हाँ हाँ सर, सर फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं, इतना लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया जितना मेरे मम्मी पापा को कॉन्ग्रेचुलेट किया सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग दिस सर। राइटली सो. यार फील आई एम वेरी हैप्पी सर, मेरे को तो चल सर फ्रेंड्स हैं, कुछ थोड़े बहुत फैमिली वाले हैं सर, उनने कॉन्ग्रेचुलेट किया सर, बट उनके पास सर उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो कलीग्स हैं, वो लोग सर पापा ने अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी डाला था सर, तो दे आर ऑल्सो लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम सर। तो उनको सर बहुत एक प्राइड महसूस हो रहा है सर, ये देख के मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, एंड बेसिकली सर अ साई ऑफ रिलीफ। कहीं ना कहीं सर उनके माइंड में भी था दैट दिस इज अ वेरी टफ लूप ऑफ एग्जामिनेशन, सो जितनी जल्दी से जल्दी इससे बाहर आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो उनके लिए एक सर, एक उनके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, प्राइड, एवरी टाइप ऑफ इमोशंस कैन बी सीन, एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग दिस सर। वेरी हैप्पी सीइंग दिस सर। यस सर। अभी पूरा माहौल तो एकदम एलेटेड होगा घर में, राइट? यस सर, द सोशल स्टैचर हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अब तो निकल जाओ, इतने साल से घर में रह रहे हो, घूमो थोड़ा. सर अभी मेरा है, बट सर देखिए इस महीने में सर है कुछ फैमिलीज रिलेटिव्स, मैंने कहा सर बाकी लोग जो बात कर रहे हैं मेरे से, तो मैं कह रहा हूँ कि जो रह गया है उसका मैं कंपनसेशन जो है बिफोर ट्रेनिंग आई ट्राई टू कंपनसेट ईच एंड एवरीथिंग सर। सो डेफिनेटली सर आई फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू कंपनसेट ईच एंड एवरीथिंग सर। अब व्हाट इज नेक्स्ट, कोई नया गोल या फिर अभी ज्वाइनिंग? Sir, like still I'm unable to like I'm trying to digest this result, and sir definitely sir goal तो यही है कि सर इसी फील्ड में अच्छा करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करूं, बिकॉज एंट्री तो मिल गई है, बट इफ यू विल नॉट perform well in the organization, it is very difficult to survive. So I'll try to perform well in the examination, stay in touch with the subject, and try to study more how can be the practical, trying focusing more on the practical aspects of the subject, क्योंकि सर practical अब ज्यादा यूज होने वाला है सर। ऑफ कोर्स अब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आएगी धीरे धीरे, एआई। एआई यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, on top of everything. Yeah, चलो. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। दिस इज बीन रियली नाइस. मेरे ख्याल से जो भी देखेगा वीडियो, ही वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने जो जो इनसाइट्स दिए हैं, तो आई यस होप इट हेल्प्स देम, राइट? Yes sir, sir I try to be very raw in this, like जो मैंने फॉलो किया, जो मैंने बताया सर, मैंने exactly मेरे को लगा कि these things should come out, and thank you again to you and entire Geology Concepts team for providing me this platform where I can share my experience and my happiness as well. एक्चुअली मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुम्हारा इंटरव्यू सेशन लिया है, इस बार भी लिया है, डिफरेंस भी दिखा है, और इस बार हो गया तुम्हारा, right? Yes, so congratulations once again to you and your family, है ना? thank you so much sir, thank you so much sir, thank you. Okay sir, thank you sir, thank you, good night sir, good night. Bye.